itu uber aja ya. ओके रजू भाई कैरी ऑन। या नमो रसिदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य जय जय आरती आदि जीणंदा जय जय आरती आदि जीणंदा नाभिराया मरु देवी को नंदा जय जय आरती आदि जीणंदा पहली आरती पूजा कीजे पहली आरती पूजा कीजे नर भव पामीने लाओ लीजे दूसरी आरती दीन दयाळा धुळेवा मंडपमा जग जवाळा जय जय आरती आदि जीणंदा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा चौथी आरती चौगसी चुरे मन वांछित फल शिव सुख पूरे जय जय आरती आदि जीणंदा पंचमी आरती पुण्य उपाया पंचमी आरती पुण्य उपाया मूल चंदेरु सब गुण गाया जय जय आरती आरती नंदा नाभिराया मरु को नंदा जय जय आरती आदि करो हार्दिक તમારે કહું क्या पकड़वा नमो रसिदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारण बहु चिरंजीवो वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर सोहा मणुघर पार्वती वाणी अंबर खेले अमरा बाड़ी वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर दीपाळ बणे उळाजवाळी भावे भक्ते विघ्न निवारी वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर दीपाळ बणे कलिकाळे आरती उतारी राजा कुमार पाळे वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर अमगेर मंगलिका
सुमगिर मंगलिक मंगलिक चतुर्विद संगने हो जो वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर प्रभु वीर महावीर प्रभु वीर। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय, श्री आदिश्वर भगवान की जय, जिन शासन देव की जय। Jai Jinendra. You have just seen the live Aarti and Mangal Divo from SGRS Tanak. So everybody can do the darshan before we start our Stavan program. Okay, so once again, warm welcome. We will have some stavans and then we'll do the welcome address when Samanji joins us. So we will start our Stavan program now. I'm just going to request Shailesh Bhai, are you able to unmute yourself, Shailesh Bhai? Wait a minute. Let me. ઓકે, Yes. આજનો શ્રવણ પ્રોગ્રામ ધ્વનિબેન શરૂ કરશે. ધ્વનિબેન, you can go ahead. જય જનેન્દ્ર. અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે, અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે, અવસર તરી જવાનો ફરીને નહીં મળે, અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે, સુરલોકમાં ના મળે ભગવાન કોઈને, સુરલોકમાં ના મળે ભગવાન કોઈને, અહીંયા મળ્યા પ્રભુ તે ફરીને નહીં મળે, અહીંયા મળ્યા પ્રભુ તે ફરીને નહીં મળે, અવસર તરી જવાનો ફરીને નહીં મળે, અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે, લઈ જાય પ્રેમથી તને કલ્યાણ માર્ગે, લઈ જાય પ્રેમથી તને કલ્યાણ માર્ગે, સંગાથ આ ગુરુનો ફરીને નહીં મળે, સંગાથ આ ગુરુનો ફરીને નહીં મળે, અવસર તરી જવાનો ફરીને નહીં મળે, અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે, કરશો ધર્મ નિરાતે કહે તું ગુમાનમાં,
કરશું ધરમ નિરાતે કહે તો ગુમાનમાં જે જાય છે ઘડી તે ફરીને નહીં મળે જે જાય છે ઘડી તે ફરીને નહીં મળે અવસર તરી જવાનો ફરીને નહીં મળે અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે જય જિનેન્દ્ર Jai Jinendra. Shall I sing another one or I think we- we won't have time today. yeah, we will not have time today. Dhwaniben, thank you Yeah. for a beautiful Thank you. statement. જય જિનેન્દ્ર Kenalbhai, I think Samanji પણ આવી ગયા છે. It's time, I guess we can start. Yeah. Huh? Okay. So let me. So first of all, Jai Jinendra and warm welcome to Pajoshan 2021 to all of you. We have members from Singapore Jain Sangh, we have members from Ipoh and Malacca who have joined us as well, and we've got members from other parts of the world as well who have joined us for Pajoshan 2021 with Samanji. Very, very warm welcome to all of you, and I hope all of you are well and safe wherever you are. I'm just going to take a minute or so to introduce Samanji. Samanji is very well known to the Singapore and Malaysia Sangh. So I know whatever I'm going to say is not going to make justice to how Samanji has really forged a close bond with Singapore and Malaysia Sangh. But Samanji is truly a charismatic and renowned spiritual mentor. He's a prolific author as well. He has written many, many books. And he's the founder of the Peace of Mind Foundation in Rajkot. He has traveled around the globe. He has delivered lectures in many prominent seats of learning, including universities such as the Oxford, Cambridge, and Berkeley University. And we have been blessed by Samanji in Singapore in past Pajoshans and Shibirs, including the various Chinese New Year Shibir as well that we organized recently this year in February period. And Samanji speaks profoundly, and having devotees from a variety of religious backgrounds and tradition, he's able to connect to a wide group of audience, whether they are youth, adults, or seniors. When we were doing this planning of Pajoshan, Samanji had told all of us, especially me and Kenalbhai, that it's time that we increase our standard of understanding. And this time round is going to be a deep swadhyay, right? It's time for us to, Samanji has chosen a great book, the Saman Suttam, for the duration of this Pajoshan, and we will all be very blessed to go into the details of what the book says, and Samanji will walk us through the gathas in the book, giving us insights and meanings of that book, right? So it will truly be a mesmerizing Pajoshan. I encourage all of you to attend. And Samanji, Vandami Ramansami, Samanji, I just noticed that you are on video as well now. And on behalf of the Singapore Jain Sangh, Tamaru Kup Swagat Che and Pranam Che, Samanji. And we will now, first of all, have a short ceremony. I will hand it over to Kenalbhai, who is going to kick off this ceremony. And then as part of the ceremony, we will also pass on the mic to Samanji. So Kenalbhai, over to you, Kenalbhai.
Samanji, please take over. Granth no opening ceremony. તમારે અનમ્યુટ You're કરવું on, પડશે you're on સમજી. mute, Samanji. You need to unmute. નમસ્કાર મહામંત્રથી કાર્યક્રમ પ્રારંભ કરીશું, પછી ગ્રંથ લોન્ચ કરીશું આજના સ્વાધ્યાયનું. પહેલા નમસ્કાર મહામંત્ર હાથ જોડીને સૌ મારા પછી બોલીશું. ઓમ નમો હરિહંતાણમ, ઓમ નમો હરિહંતાણમ, ઓમ નમો સિદ્ધાણમ, ઓમ નમો ઓમ નમો આયર્યાણમ, ઓમ નમો ઓમ નમો ઉવજાયાણમ, ઓમ નમો લોએ સવસાહુણમ, નમો લોએ સવસાહુણમ, એસો પંચનમકારો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવેસિમ, મંગલાણમ ચ પઢમં આવૈ મંગલમ, પઢમં આવૈ મંગલમ. Welcome everyone for Paryushan Parva celebration 2021. અને આજે આ પર્યુષણ પાવન પર્વનો પહેલો દિવસ, આવતા 8 દિવસ માટે જે ગ્રંથનું આપણે પારાયણ કરવાનું છે એ ગ્રંથનું આજે જ્ઞાન પૂજન કરીશું. અને ભૂમિલભાઈ અને રવિભાઈ અને એમના પરિવાર દ્વારા આ જ્ઞાન પૂજનનો એમને લાભ મળી રહ્યો છે. બાકી સૌ સાધર્મિક શ્રાવક સમાજ આ કાર્યક્રમના સાક્ષી બની રહ્યા છે એ સદભાગી છે. તો આપણે જે ગ્રંથ લેવાનો છે આ વખતે એનું નામ છે સમણ સુત્તમ. સિંગાપુર જૈન સંઘ આટલા વર્ષોના સ્વાધ્યાય અને સત્સંગ પછી હવે એક એડવાન્સ લેવલ ઉપર જઈ રહ્યો છે એવું મારું પર્સનલ માનવું છે. ત્યારે આ વખતે મેં વિચાર કર્યો કે એક ગ્રંથના આધારે આપણે બરાબર સત્સંગ અને સ્વાધ્યાય કરીએ વિધિવત, જેથી આપણી જાતને આપણે વધારે એલિવેટ કરી શકીએ. તો પહેલા આપણે આ ગ્રંથનું જ્ઞાન પૂજન કરીશું, સમણ સુત્તમ ગ્રંથનું. અને આ બે પરિવારને હું વિનંતી કરું છું પરિવાર સાથે એ સમણ સુત્તમ ગ્રંથ પર એ જ્ઞાન પૂજનની વિધિ આપણે કરીશું. નમો રેંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સબ્બ સાહુણમ, એસો પંચનમુકારો સબ્બ પાવ પણાસણો, મંગલાણંચ સવ્વે સિંહ પડમમ હવઈ મંગલમ. હાથમાં વાસક્ષેપ રાખીશું અને એ વાસક્ષેપ એ ગ્રંથ ઉપર આપણે જે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું એમાં પહેલી વાર અને છેલ્લી વાર, પહેલું અને પાંચમી વારના મંત્રોચ્ચારમાં આપણે વાસક્ષેપ એ ગ્રંથ ઉપર પ્રક્ષાલિત કરીશું. પેલો મંત્ર હું બોલું છું જ્ઞાનનો, અને જે પરિવાર લાભ લઈ રહ્યા છે એ પહેલા મંત્રના ઉચ્ચારણ વખતે અને પાંચમા મંત્રના ઉચ્ચારણ વખતે વાસક્ષેપ દ્વારા એ ગ્રંથનું ભાવ પૂજન કરશે. ઓમ નમો નાણસ, ઓમ નમો નાણસ, ઓમ નમો નાણસ, ઓમ નમો નાણસ. ફરી એક વાર ઓમ નમો નાણસ. હવે બીજા મંત્ર દ્વારા જ્ઞાન પૂજન કરીશું. એમાં પહેલા અને પાંચમી વારમાં વાસક્ષેપ
દ્વારા ગ્રંથનું પૂજન કરીશું. ઓમ રીમ નમો જીનાણમ. ઓમ રીમ નમો જીનાણમ. ઓમ રીમ નમો જીનાણમ. ઓમ રીમ નમો જીનાણમ. ઓમ રીમ નમો જીણાણમ. હવે ત્રીજો ને છેલ્લો મંત્ર, એમાં પહેલી વાર અને પાંચમી વારમાં વાસક્ષેપ દ્વારા જ્ઞાન પૂજન દરેક સભ્ય દ્વારા. ઓમ રીમ ગણધર ભગવંતને નમઃ. 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 હવે સૌ જ સાધર્મિક બધું હાથ જોડીને હું જે સંકલ્પ બોલું છું, આજથી જે સ્વાધ્યાય ચાલુ રહ્યો છે, આપણે સૌ સંકલ્પ કરીશું કે આ 8 દિવસના સત્સંગમાં આપણે શું કરવાનું છે એનો સંકલ્પ કરીશું. બધા જ હાથ જોડીને મારા પછી बोलीशु. आज से पर्युषण के पावन दिनों में बोलिए. आज से पर्युषण के पावन दिनों में समण सुत्तम ग्रंथ का पारायण प्रारंभ कर रहे हैं. ये जिनवाणी आधारित ग्रंथ मेरे जीवन में राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन करेंगे. ज्ञान दर्शन चारित्र तप की वृद्धि करेंगे. आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे. ऐसा मैं विश्वास करता हूँ. ज्ञान पूजन संपन्न. भूमिल भाई અને રવિભાઈ દ્વારા એના પરિવાર દ્વારા આ લાભ લેવામાં આવ્યો છે. સંઘે આ લાભ આપ્યો છે. બંને પરિવારો સદભાગી છે અને આ લાભ લેવાની પાછળનો મર્મ એ છે કે જેટલા લોકો સ્વાધ્યાય કરશે, જેટલા લોકો ઓનલાઈન સ્વાધ્યાયમાં જોડાશે અને જે એમના ભાવ પરિવર્તન અને કર્મ નિર્જરા થશે, એમનો લાભ આ પરિવારને મળવાનો છે. અને આ બંને પરિવાર ત્યાગ દ્વારા, સંયમ દ્વારા કોઈક વસ્તુનો વર્ષ સુધીનો ત્યાગ કરીને આ જ્ઞાન પૂજનની વિધિ કરી છે. તો બંને પરિવારોએ આ સમણ સુત્તમ ગ્રંથ છે, આપ જોઈ રહ્યા છો. આ સમણ સુત્તમ ગ્રંથ જેની હું આજે વાત કરવાનો છું, અદ્ભુત ગ્રંથ છે. અને આ વખતે કોઈક અજ્ઞાત પ્રેરણા થઈ કે આ ગ્રંથ ઉપર પર્યુષણમાં આપણે ડીપલી જઈને એનો સ્વાધ્યાય કરીએ. તો આ જ્ઞાન પૂજનની વિધિને હું સંપન્ન કરું છું. બંને પરિવારોને સંઘ વતી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું, ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું છું કે ત્યાગ અને સંયમ દ્વારા આપે આ લાભ લીધો. એ સંઘનું ગૌરવ છે. થેન્ક યુ. જય જીનાથ. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના ક્રમમાં આગળ વધીશું. પરેશભાઈ, should I continue? હા સમનજી, પ્લીઝ. તો આજના વિષયમાં હું સ્વાધ્યાયનો પ્રવેશ કરું એના પહેલા બે સૂચના દરેક શ્રાવક શ્રાવિકાઓને. પહેલી સૂચના એ છે કે પૂરી એકાગ્રતાથી, પૂરા ભાવથી, પૂરા અહોભાવથી આ સ્વાધ્યાયમાં આપણે જોડાશું. કેમ કે સ્વાધ્યાય પૂરો થશે એટલે છેલ્લે મારા ક્રમ પ્રમાણે હું પ્રશ્ન પૂછવાનો છું. એટલા માટે આપ સૌ પહેલેથી જ તૈયાર રહેજો. નહીં તો ઘણા કહે કે તમારે પહેલા કેવું હતું ને તમે ધ્યાનથી સાંભળત.
હવે મેં પહેલા કહેવાનું ના હોય, ધ્યાનથી જ સાંભળવાનું. એટલે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે આજના પ્રવચન પછી તરત જ, જેથી તાજું તાજું જે સાંભળ્યું હોય તમે જવાબ કદાચ આપી શકશો. બીજી વસ્તુ કે આ જીન વાણી છે, ભગવાનની વાણી, ડાયરેક્ટલી ઓરિજિનલ વાણી હું મારી ભાષામાં મારી અભિવ્યક્તિ દ્વારા તમારી સામે પ્રસ્તુત કરીશ. એટલે જીન વાણીમાં એકાગ્રતાથી સાંભળો તો જ એ એમનો ઉપકાર આપણે વેદ્યો કહેવાય, સેવ્યો કહેવાય. મલ્ટાઇટાસ્કિંગ કરીને એક સાથે 5 કામ કરતા કરતા જીન વાણીનો સ્વાધ્યાય ના થાય એવી મારી વિનંતી છે. કે પર્યુષણના પવિત્ર દિવસો છે તો 8 કલાક, આ 1.5 કલાક 2 ટાઈમ સવાર અને સાંજ પૂરું ફોકસ કરીને પૂરો આ ટાઈમ ડેડિકેટ કરો તમારી આત્મા માટે. અને આ 2 ટાઈમ બરાબર પૂરા મનથી, પૂરા ભાવથી, પૂરા શરીર સાથે આપણે સ્વાધ્યાયમાં જોડાઈએ. બીજી કોઈ એક્ટિવિટી આ સત્સંગ દરમિયાન ન હો એવી મારી હૃદયથી આપને ભાવપૂર્વક રિક્વેસ્ટ સાથે આપને હું પ્રણામ કરું છું. અને હવે આ જ ભાવ સાથે, સૂચનાઓ સાથે આપણે આજનો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. ધ્યાનમૂલમ ગુરુર્મૂર્તિ પૂજામૂલમ ગુરુપદમ મંત્રમૂલમ ગુરુર્વાક્યમ મોક્ષમૂલમ ગુરુકૃપા મોક્ષમૂલમ ગુરુકૃપા. સદગુરુના પાવન શ્રી ચરણોમાં વંદના. સિંગાપુર જૈન સંઘના સમસ્ત શ્રાવક શ્રાવિકાઓ અને ઓનલાઈન દ્વારા દેશ અને દુનિયામાં જે લોકો કનેક્ટ થયા છે સૌને મારા તરફથી ઓમ અરહમ જય જનન. 2021 ના પર્યુષણ બહુ જ ઉત્સાહ સાથે, બહુ જ અહોભાવ સાથે આજથી આપણે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ. જો કે આ પર્યુષણ 2020 ના પર્યુષણની જેમ જ ઓનલાઈન ઝૂમ દ્વારા, મીડિયા દ્વારા આયોજિત થઈ રહ્યા છે. ફિઝિકલી ઇન પર્સન વર્તમાન પરિસ્થિતિની વિકટતાના કારણે આપણે મળી શકતા નથી. પણ આ વૈજ્ઞાનિક યુગમાં મીડિયા દ્વારા આપણે એકબીજાને મળી શકીએ છીએ અને સત્સંગ અને આધ્યાત્મિક દ્વારા આપણી જાતને વધારે એલિવેટ કરી શકીએ છીએ. તો હું સિંગાપુર જૈન સમાજના લોકોને મારા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યો છું. ખૂબ જ ભાવથી, ખૂબ જ જિજ્ઞાસા વૃત્તિ સાથે, ખૂબ જ અહોભાવ સાથે, શ્રદ્ધા સાથે આજથી પર્યુષણની આરાધના કરવા માટે પોતાની જાતને કટિબદ્ધ કરી છે. એ તમારી શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું દર્શન કરાવે છે. આજથી જે ગ્રંથનું આપણે પારાયણ કરવાના છીએ એ ગ્રંથનું નામ છે સમણ સુત્તમ. અને આજે હું જે વિષય ઉપર ચર્ચા કરવાનો છું, નિર્ધારિત વિષય, એ વિષય છે આજનો મારો કૈસા હૈ હમારા માંગલિક. માંગલિક અને મંગલ પાઠ. માંગલિક અને આપણે કોઈ પણ કામ જ્યારે શરૂ કરીએ ત્યારે જીન શાસનમાં એવા સંસ્કાર છે કે આપણે માંગલિક સાંભળીને કોઈક સારું કામ કરવાની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. તો સમણ સુત્તમના આધારે, આ પવિત્ર ગ્રંથના આધારે
માંગલિક શું છે, જે અવારનવાર આપણે માંગલિક સાંભળીએ છીએ, પણ એનું રહસ્ય શું છે, એનું મર્મ શું છે, એનું સિક્રેટ શું છે, એનું મહત્વ શું છે, એને આજે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. પહેલી વાત, સમણ સુત્તમ ગ્રંથ શું છે એની હું આપને થોડી ઝાંખી કરાવું. મેં ઘણા લોકોને પૂછ્યું, ઇવન સિંગાપુર જૈન સમાજમાં પણ કમિટી વાળા અમુક જે લોકો સાથે હું બરાબર સંપર્કમાં હતો, પરેશભાઈ, કેનલભાઈ અને પડદા પાછળ બીજા અનેક લોકો જોડાયેલા હતા, એ બધાને મેં વાત કરી કે આ વખતે આવો સંકલ્પ થઈ રહ્યો છે કે આપણે સમણ સુત્તમ ઉપર સ્વાધ્યાય કરીએ. મારા માટે કોઈ આશ્ચર્ય નથી, પણ મને નવાઈ લાગી કે સમણ સુત્તમ ગ્રંથ વિશે કોઈને ખબર નથી. કદાચ આ સંઘના જેટલા મેમ્બર છે એમાંથી પણ ઘણાને ખબર નહીં હોય કે આ ગ્રંથ શું છે. એટલે મને થયું કે આ ગ્રંથ પણ આપણી સામે આવે, આ ગ્રંથના અંદર જે તત્વ છે એ પણ આપણા સૌની સામે આવે. એટલે આ ગ્રંથ લેવાની કોઈક અજ્ઞાત મને પ્રેરણા થઈ અને આપણે એમાં યાત્રા કરીશું. આ સમણ સુત્તમ ગ્રંથ એ એક એવો ગ્રંથ છે જેને જૈન ધર્મની ભગવત ગીતા કહી શકાય. આ જૈન ધર્મનો સમણ સુત્તમ ગ્રંથ એવો ગ્રંથ છે જેને આપણે ઇસ્લામનું કુરાન કહી શકીએ, જેને આપણે ઈસાઈઓનું બાઇબલ કહી શકીએ, જેને આપણે હિન્દુઓનું ભાગવત કહી શકીએ. એવો એક પવિત્ર ભગવાન મહાવીર स्वामीની ओरिजिनल वाणी के आधार पर यह ग्रंथ हमारे सामने. ये ग्रंथ कैसे प्रकट हुआ उसके थोड़ी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी के बारे में आप सब जानते हैं कि भारत भूमि को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने में जिनका अथाक संकल्प था वो महात्मा गांधी. और महात्मा गांधी के समकालीन कंटेम्पररी एक महापुरुष हुए जिसका नाम विनोबा भावे. ये विनोबा भावे महाराष्ट्र के थे. वर्धा में उनका आश्रम अभी भी है. और वो विनोबा भावे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, बहुत आध्यात्मिक, अनासक्त, बहुत क्रिएटिव, बहुत डिटेच व्यक्ति थे, बहुत स्पिरिचुअल पावर था उनके अंदर. उसके मन में एक बार विचार आया कि मैं घर छोड़कर, समाज छोड़कर जंगल में चला जाऊं. अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विनोबा भावे ने जंगल में जाने का संकल्प किया. जंगल में जाने के पहले पता नहीं किसी ने सूचन किया होगा, एडवाइस दी होगी और कहा कि एक बार आप महात्मा गांधी से मिल लो, फिर आप हिमालय जा सकते हैं. और कहते हैं कि विनोबा भावे उस सजेशन को टाल नहीं सके और वो महात्मा गांधी को मिलने का. पहली बार वो महात्मा गांधी को मिले, मिलते ही उसका मन बदल गया और उन्होंने उसी समय उद्गार व्यक्त किया कि मेरे लिए महात्मा गांधी स्वयं हिमालय है. अब मुझे हिमालय जाने की जरूरत नहीं है. ये जो महापुरुष बैठा है मेरे लिए साक्षात हिमालय यहीं पर है और वो महात्मा गांधी के चरणों में जिंदगी भर समर्पित. ये विनोबा भावे ने एक बार क्या किया, विनोबा भावे इतने आध्यात्मिक थे कि सभी धर्मों का उन्होंने अभ्यास किया. अभ्यास किया उतना नहीं, अभ्यास करने के बाद उन्होंने अपनी कलम चलाई, कुरान पर खूब स्टडी की और कुरान सार नाम का ग्रंथ लिखा खुद ने. बाइबल पर खूब स्टडी की और बाइबल के आधार पर ख्रिस्ती धर्म का सार नाम का पुस्तक लिखा. भगवत गीता पर बहुत प्रवचन दिए और भगवत गीता के प्रवचन नाम से उनका पूरा पुस्तक प्रकाशित हुआ.
इसी तरह भागवत पर कृष्ण का जीवन चरित्र जो माना जाता है, उन पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। जब बात जैन धर्म की आई कि जैन धर्म का भी अभ्यास करूं, तो जरा डगमगाने लगे कि जैन धर्म का अभ्यास, गीता तो पढ़ना आसान है, एक ही ग्रंथ है, कुरान पढ़ना आसान है, एक ही ग्रंथ है। अब जैन धर्म में 45 आगम, स्थानकवासी परंपरा में 32 आगम, इतने सारे ग्रंथ में मेरी जिंदगी में अब कैसे पढ़ूंगा। उस समय 2500वीं निर्वाण शताब्दी थी। ये बात है करीब करीब आज से 50 साल पहले। उस समय विनोबा भावे जी ने जब 2500वीं भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण शताब्दी थी, उस समय जैन आचार्यों के चरणों में बैठकर विनंती की कि आप जैन धर्म की डोर अपने हाथ में लिए चल रहे हो, मेरी नम्र विनंती है कि जैन धर्म के इतने सारे आगम, इतने सारे ग्रंथ कौन पढ़ेगा। मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, आने वाली पीढ़ी का तो सवाल ही नहीं। तो मेरी विनंती है, 2500वीं भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी है, पवित्र अवसर है, आप संकल्प करें और कोई एक ग्रंथ, जैसे भगवत गीता एक ग्रंथ है, ऐसे जैनों का एक ग्रंथ हो, ताकि जो 45 शास्त्र न पढ़ सके वो एक ग्रंथ को पढ़कर जिन शासन क्या है उसको समझ सके। इसी संकल्प के कारण हमारे सामने जो ग्रंथ आया उसी का नाम है समण सुत्तम। और ये ग्रंथ 1974 में, 1974 में पहली बार संकलित होकर सामने आया और पहली बार जैन आचार्यों ने यह ग्रंथ जैन साधु साध्वियों के बीच में, जैन आचार्यों के बीच में, उपाध्याय भगवंतों के बीच में, जैन पंडितों के बीच में विधिवत सिस्टेमेटिकली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया और सबका सहमति लेकर यह ग्रंथ पब्लिश हुआ। और इस ग्रंथ का नाम भी बदलते गए और फाइनली इस ग्रंथ का नाम रखा गया समण सुत्तम। समण प्राकृत शब्द है, सुत्तम प्राकृत शब्द है। समण यानी श्रवण, भगवान महावीर स्वामी को हम श्रवण भगवान महावीर कहते हैं। तो समण यानी भगवान महावीर की वाणी, और सुत्तम का अर्थ है सुक्त, सुत्तम का अर्थ है कोटेशन, सुत्तम का अर्थ है सिलेक्टेड वाक्य, सिलेक्टेड मंत्र रूप में जो भगवान की वाणी है वो हमारे सामने आई, इसीलिए नाम पड़ा समण सुत्तम। सुत्तम शब्द अर्धमागधी है, प्राकृत है, उसका अर्थ हिंदी में होता है सुक्तम। सुक्तम यानी सुवाक्य। और मैं ये भी आपसे विनंती करूं कि कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि जैन धर्म में एक और ग्रंथ है जिसका नाम तत्वार्थ सूत्र। जानने वाले अभ्यासी जानते होंगे, तत्वार्थ सूत्र ऑलरेडी जैन धर्म का एक ग्रंथ है और संकलित ग्रंथ, और एक ग्रंथ में पूरा जैन धर्म का सार। तो ये तो ग्रंथ ऑलरेडी पहले से था, तो फिर समण सुत्तम ग्रंथ अलग से क्यों संकलित किया गया? दोनों में फर्क है। तत्वार्थ सूत्र भगवान महावीर की ओरिजिनल वाणी नहीं है। भगवान महावीर के उपदेशों के आधार पर अलग ढंग से लिखी गई वाणी है आचार्यों के द्वारा। तो तत्वार्थ सूत्र आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथ है। समण सुत्तम तीर्थंकरों की स्वयं लिखित वाणी। पहला फर्क। दूसरा फर्क, तत्वार्थ सूत्र संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, जबकि समण सुत्तम अर्धमागधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अर्धमागधी भाषा ओरिजिनली भगवान महावीर की वाणी है। बिहार में उस जमाने में अर्धमागधी भाषा में सारे लोग बोलते थे। भगवान ने भी संस्कृत भाषा छोड़कर लोगों की भाषा में बोलना चालू किया। बिहार में उस समय मागधी, मगध प्रदेश के कारण मागधी भाषा या अर्धमागधी भाषा या प्राकृत भाषा
का उन्होंने माध्यम बनाया और भगवान महावीर स्वामी ने उसी भाषा में उपदेश दिया। तो ये दो फर्क है तत्वार्थ सूत्र में और समण सूत्रम में। एक संस्कृत में है, एक अर्धमागधी में। एक आचार्य द्वारा लिखित है, एक तीर्थंकरों की ओरिजिनल वाणी है। ये दो उसका मुख्य फर्क है। और हम आगे चले तो ये समण सूत्रम में टोटल 756 गाथा है। समण सूत्रम ग्रंथ में टोटल 756 गाथा है। ये 756 गाथाओं को समण सूत्रम में 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया। वो 4 खंड उसको बोलते हैं, 4 डिवीजन। पहले खंड का नाम है ज्योतिर्मुख, खाली नाम जान ले। दूसरे खंड का नाम है मोक्ष मार्ग। तीसरे खंड का नाम है तत्वदर्शन और चौथे खंड का नाम है शादवाद। इन 4 खंडों में समग्र जैन धर्म, समग्र जिनवाणी समाहित कर दी गई है। 756 श्लोक में पूरा जिन शासन का सार इसमें आ गया। आप 32 आगम 45 आगम पढ़ सके तो बहुत बहुत अनुमोदना। लेकिन अगर ये न पढ़ सके, एक समण सूत्रम अगर आप भाव से, अर्थ के साथ, भावार्थ के साथ, विवेचन के साथ पढ़ ले तो शायद आत्मज्ञान की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिर्मुख जो पहला खंड है उसमें 191 श्लोक है, 191 श्लोक गाथा। मोक्ष मार्ग है, उसके अंदर 396 श्लोक है, 396 गाथा। तत्वदर्शन तीसरा खंड है, उसके अंदर 72 गाथा है। और शादवाद जो चौथा खंड है उसके अंदर करीब करीब 97 गाथा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर गाथा होती है 756 गाथा। अब इतना समण सूत्रम का परिचय देने के बाद अब मैं मूल विषय में प्रवेश करूं, फिर समय समय पर जहां जहां प्रसंग आएगा बात करता रहूंगा। आज जो मेरा विषय है, जिन शासन में मांगलिक, कैसा है हमारा मांगलिक, उस पर मैं थोड़ी बात करूं। ये विषय समण सूत्रम में सबसे पहले इसलिए लिया गया कि यहीं से हमारे जैनत्व के संस्कार चालू होते हैं। नमस्कार महामंत्र और मंगल पाठ, ये दोनों मांगलिक पाठ के रूप में जैन धर्म में प्रसिद्ध है। इसकी चर्चा करने के पहले 2 प्रकार की धर्म की मान्यता को समझ। There are 2 type of belief of the religion. धर्म की 2 प्रकार की मान्यता, 2 types of religious belief. पहले कॉन्सेप्ट सेट कर ले दिमाग में, ताकि जिन शासन की जर्नी करने में सुविधा हो। पहली मान्यता, मान्यता का मतलब है बिलीफ सिस्टम। पहली बिलीफ यह है धर्म की, इन जनरल धर्म की पहली बिलीफ है जिसको कहते हैं ईश्वरवादी बिलीफ। Who believe the God, उसको पहली बिलीफ कहते हैं। ईश्वरवादी मान्यता। ईश्वरवादी मान्यता किसको कहते हैं? ईश्वरवादी मान्यता का अर्थ है भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। बराबर समझना, भगवान स्वयं मनुष्य के रूप में जन्म धारण करते हैं, जिसको हिंदू परंपरा में शब्द यूज किया, अवतार लेते हैं। भगवान मनुष्य बनते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू परंपरा कृष्ण भगवान थे, इंसान का रूप धारण किया। राम भगवान थे, इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म धारण किया। इसको कहते हैं अवतारवाद। अवतार लिया, भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया।
ભગવાન મનુષ્ય બન્યા તો એક માન્યતા છે કે ભગવાન મનુષ્યના રૂપે અવતરિત થાય છે આ ધરતી ઉપર, એને કહેવાય ઈશ્વરવાદી માન્યતા। और दूसरी मान्यता है आत्मवादी मान्यता। बराबर जैन लोगों को ये दोनों मान्यता समझ लेनी चाहिए। ये फिलोसॉफिकल बेसिक डिफरेंट। आत्मवादी मान्यता बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। आत्मवादी मान्यता का अर्थ यह है कि भगवान मनुष्य नहीं बनता है, मनुष्य भगवान बनता है। कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, बहुत क्लियर कट बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर होना चाहिए। आत्मवादी विचारधारा, आत्मवादी बिलीफ सिस्टम ये मानती है कि मनुष्य मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, कर्मों के साथ, फिर साधना करता है, तपश्चर्या करता है, कर्म तोड़ता है और धीरे 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 आत्मा परमात्मा बनती है, जिसको अवतारवाद नहीं कहते हैं, जिसको उत्तारवाद कहते हैं। उत्तार यानी नीचे से ऊपर जाना, उत्तार शब्द है, जरा जरा सिंगापुर वालों के लिए जरा टेक्निकल शब्द होगा। उत्तारवाद यानी नीचे से ऊपर जाना, और अवतारवाद का मतलब ऊपर से नीचे आना। भगवान ऊपर से नीचे आते हैं तो अवतारवाद कहते हैं, मनुष्य नीचे से ऊपर जाते हैं तो उत्तारवाद कहते हैं। महावीर स्वामी ने भगवान के रूप में जन्म नहीं लिया, इंसान के रूप में जन्म लिया, साधारण आदमी के रूप में जन्म लिया, साधारण परिवार में जन्म लिया। फिर जन्म लेने के बाद पूर्व कर्म के कारण उनको 3 ज्ञान थे, फिर बहुत सारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए 30 साल की उम्र में जंगल में निकल पड़े, साधना की, तपश्चर्या की, ध्यान किया, मौन किया, कर्मों को तोड़ा, और मनुष्य होने के बाद, साधक बनने के बाद, साधु बनने के बाद कर्मों की निर्जरा करके वो तीर्थंकर बने, और फिर देह छोड़कर वो भगवान बने, ईश्वर बने, या कहो सिद्ध बने। तो ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सबको। ईश्वरवादी मान्यता भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, आत्मवादी मान्यता मनुष्य साधना करके मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद वो भगवान बनते हैं। तो ये पहली बेसिक चीजें हम सबको समझ लेनी चाहिए। जैन धर्म में सर्वाधिक कोई मूल्य हो तो वो है पंच परमेष्टि का। मैं विषय में प्रवेश कर रहा हूं समय की मर्यादा में। जैन धर्म में सर्वाधिक किसी का महत्व हो तो पंच परमेष्टि। तो पंच परमेष्टि कौन, मेरे साथ साथ चलिएगा, सोचते जाइए। पंच परमेष्टि यानी 5 परम इष्ट को पंच परमेष्टि बोलते हैं। 5 परम आत्मा, 5 उत्कृष्ट आत्मा, जिसको पंच परम इष्ट में मैं टुकड़े करके बोल रहा हूं। पंच यानी 5, परम यानी टॉप, श्रेष्ठ, इष्ट यानी प्रिय, आदरणीय, वंदनीय, आराध्य, पूजनीय। ऐसी 5 आत्माएं हैं जिसके आधार पर हमारा नमस्कार महामंत्र बना। वो नमस्कार महामंत्र यानी पंच परमेष्टि की आराधना। अरिहंत पहला इष्ट पंच परमेष्टि में, सिद्ध दूसरा इष्ट, आचार्य तीसरा इष्ट, उपाध्याय चौथा इष्ट, और साधु 5वां इष्ट। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरिहंत पहला इष्ट है, इसलिए मंत्र आया नमो अरिहंताणम। सिद्ध हमारा दूसरा इष्ट है, इसलिए मंत्र आया नमो सिद्धाणम। आचार्य हमारे तीसरा इष्ट है, इसलिए मंत्र आया नमो आयर्याणम। उपाध्याय हमारा चौथा इष्ट है, इसलिए मंत्र आया नमो उवज्जायाणम। उवज्जायाणम यानी उपाध्याय भगवान। और साधु हमारा 5वां इष्ट है, इसलिए मंत्र आया नमो लोए सव्व साहुणम। लोक के समस्त साधुओं को
मेरा नमस्कार। ये 5 परम आत्मा जो आराध्य है सब जीवों की। अब ये 5 इष्ट की आराधना करने से क्या होता है? तो 4 पद ऐड किए गए चूलिका के। ऐसो पंच नमोकारो, ये 5 नमस्कार महामंत्र की आराधना करने से सब पाव पणासणो, सर्व प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते। मंगलानंच सव्वे सिंह, दुनिया में जितने भी मंगल है उसमें परमम हवै मंगलम, सबसे उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ मंगल अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये सब आध्यात्मिक आत्माएं इन 5 में आ गई। अरिहंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई भी अरिहंत हो सकता है। अरि यानी दुश्मन, हंत यानी नाश करने वाला। जिन्होंने अपने दुश्मनों को नाश कर दिया वो अरिहंत। किन्होंने नाश कर दिया? कौन से दुश्मन? कई लोग कहेंगे हिंदुस्तान ने कई दुश्मनों को नाश कर दिया है। आजकल तो दुश्मन और बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान, तालिबान, कितने कितने दुश्मन बढ़ रहे हैं। ये बाहर के दुश्मनों का नाश करने से कोई अरिहंत नहीं होता है। अंदर के दुश्मनों को जिन्होंने नाश कर दिया, अरे यानी शत्रु, हंताणम यानी नाश करने वाले, जिन्होंने अंदर के दुश्मनों को नाश कर दिया। क्रोध, मान, माया, लोभ का जिन्होंने नाश कर दिया, राग और द्वेष का जिन्होंने नाश कर दिया, वो अरिहंत किसी भी ड्रेस में हो, किसी भी एड्रेस पे हो, किसी भी देश में हो, उसको मेरा नमस्कार। कितना व्यापक मंत्र है। अरिहंत में किसी तीर्थंकर तक का नाम इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि तीर्थंकर के सिवाय भी कोई भी अरिहंत हो सकता है। इन अनंत 24 में कितने अरिहंत हुए, उन सबको मेरा नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार। कौन सिद्ध भगवान? जिन्होंने जन्म मरण से अपने आप को मुक्त कर दिया। नो नेक्स्ट बर्थ, नो नेक्स्ट डेथ, जिसका फिर से कभी जन्म नहीं होता है, जिसकी फिर से कभी मृत्यु नहीं होती है, न जन्म न मृत्यु, ऐसी शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा नमो सिद्धाणम। तीसरा नमो आयरियाणम, आचार्यों को मेरा नमस्कार। आचार्य यानी जो गुरु है, जो संघ का संचालन करते हैं, जो एक संघ का हेड बनकर समस्त साधु साध्वियों के आचार विचार और व्यवहार की व्यवस्था करते हैं, खुद पंच महाव्रत पालते हैं और साधु संतों को पंच महाव्रत निष्ठा से पलवाते हैं, ऐसे आचार्य भगवंत को मेरा नमस्कार। नमो वज्जायणम, उपाध्याय जो ज्ञान की आराधना करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, ऐसे नॉलेजेबल व्यक्ति, ज्ञान की आराधना करने वाले उपाध्याय भगवान को मेरा नमस्कार। नमो लोए सब साहुणम, लोक में कहीं भी शुद्ध साधु हो, पंच महाव्रतधारी साधु हो, अकिंचन साधु हो, अपरिग्रही साधु हो, उन साधु को मेरा नमस्कार हो। ये 5 नमस्कार करने से सब पापों का नाश हो जाता है। नाश हो जाता है का मतलब है कि उस आदमी के अंदर जितने भी कर्म बंधे हैं, धीरे 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 निर्जरा होने लगती है। अगर इस भाव से, इस निष्ठा से कनेक्ट होकर हम पंच परमेष्टि की आराधना करें तो, और जितने भी दुनिया में मंगल है, ये श्रेष्ठ मंगल है। तो मांगलिक का एक अंग है नमस्कार महामंत्र, मांगलिक का दूसरा अंग है जिसको मंगल पाठ बोलते हैं। तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा और सुनेंगे आगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक प्रश्न आपके सामने पुटअप करता हूं, और वो प्रश्न ये है कि ये जो मांगलिक है, ये जो पंच परमेष्टि है, उसको वो हमारे परमेष्टि क्यों है, वो हमारे आराध्य क्यों है, वो नमस्कार करने योग्य क्यों है, इस पर भी हम थोड़ा विचार करें। तो पहली बात यह है कि पंच परमेष्टि मंगल है। हम पंच परमेष्टि को नमस्कार क्यों करें? क्योंकि पंच परमेष्टि हमारे लिए मंगल है। दुनिया में कहीं भी मंगल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पंच परमेष्टि को भाव से याद कर लो और कोई काम शुरू करो, मंगल ही मंगल है।
तो पहली बात मंगल है। दूसरी बात वो उत्तम है। खाली मंगल तो बहुत चीजें हो सकती है लेकिन उत्तम नहीं होगी। मंगल भी हो और नंबर 2 कंडीशन उत्तम भी। अब हमारे यहाँ तो लौकिक परंपरा में दही भी मंगल है, नारियल भी मंगल है, गुड़ भी मंगल है, लेकिन उत्तम नहीं है। तो मंगल भी हो और उत्तम भी हो, ये पंच परमेष्टि मंगल भी है और उत्तम भी है। उत्तम यानी उसका अनुसरण करने योग्य है, उसके अनुसार चलना हमारा संकल्प होना चाहिए। तो नंबर 1 मंगल है, नंबर 2 उत्तम है और नंबर 3 शरण रूप है, जिसके चरणों में हम समर्पित हो सकते हैं, जिसके चरणों में हम अपने ईगो को झुका सकते हैं, जिसके चरणों में हम अपने अहंकार को झुकाकर विनम्र बनकर ज्ञान की आराधना कर सकते हैं। इसलिए ये नमस्कार महामंत्र और मांगलिक मंगल है, और इसीलिए मंगल है जिसके कारण हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो मंगल है, उत्तम है और शरण रूप है। मांगलिक में यही कहा गया है। हम सुनते हैं इस मंगल पाठ। Can't hear Kerobai. किरण भाई आवाज આવે છે? નથી આવતું. Kerobai, I think you need to share with computer sound. Yeah. એક મિનિટ. अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवले पन्नत्तो धम्मो मङ्गलम् अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवले पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। तो ये मांगलिक में 3 स्टेप बताए। नंबर 1 मंगल है, नंबर 2 उत्तम है, नंबर 3 शरण रूप है। विचार करें कि मंगल कैसे है। जरा मंगल पर विचार करें थोड़ा। मंगल इसलिए है कि वो हमें प्रभावित करते हैं। जरा बहुत एकाग्रता से समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा फोकस कीजिएगा। मंगल इसलिए है कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमें प्रभावित करती है। प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ हो चाहे वो जीव हो, हमें प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि हर चीज, व्यक्ति या वस्तु रेडिएशन छोड़ते हैं, और वो रेडिएशन हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे भावों पर, हमारे आत्मा प्रदेश पर असर करते हैं। जड़ चीजों का प्रभाव भी होता है, जिस पर अभी मैं चर्चा न करूं, लेकिन हर चीज, हर जीवित व्यक्ति, आप जिसके पास बैठते हो ना, उसका भी आपके ऊपर प्रभाव। आप किसके पास बैठते हो, उस व्यक्ति के वाइब्रेशन आपको असर करते हैं। इसीलिए, और आप किस व्यक्ति को टच करते हो, वो टच करने से भी उसके वाइब्रेशन आपको असर। बहुत साइंटिफिक है ये बात, और इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किन के पास बैठे, हम किन के साथ रहे।
ज्ञानी के साथ रहने वाला ज्ञानी बनता है और अज्ञानी के साथ रहने वाला अज्ञानी बनता है। बच्चे के साथ रहने वाला बच्चा बनता है, बूढ़े के साथ रहने वाला बूढ़ा बनता है, जवान के साथ रहने वाला ऊर्जावान बनता है। हम किसके साथ रहे? मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगापुर वाले जरा नाराज न हो, बूढ़ा पे उम्र से तो कोई मतलब ही नहीं मेरा। 70-80 साल के भी जवान होते हैं और 20 साल के आदमी भी नेगेटिव विचार करके निराश होके हताश होके बूढ़े पे की ओर चले जाते हैं। तो मेरे शरीर की अवस्था से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसके साथ रहते हो। भगवान महावीर ने कहीं लिखा है शायद उत्तराधीन सूत्र में, अज्ञानी से दूर रहना मंगल है। बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अज्ञानी से दूर रहना मंगल है। जितना भी अज्ञानी हो, मूर्ख हो, मूढ़ हो, नासमझ हो, नादान हो, उससे दूर रहो, क्योंकि उनका इन्फेक्शन लगेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी के पास रहना मंगल है। अरिहंत ज्ञानी है उनके पास रहो, सिद्ध ज्ञानी है उनके पास रहो, आचार्य ज्ञानी है उनके पास रहो, उपाध्याय 11 अंग 12 अंग को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं परम ज्ञानी उनके पास रहो, साधु नित्य स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान की आराधना करते हैं उनके साथ रहो। तो अच्छे लोगों के साथ रहो। इसलिए हमारे वहां कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी संग होता है वैसा आदमी को रंग लग जाता है। अगर जड़ चीजें भी, अभी विस्तार में ना जाऊं, मुझे श्लोक में जाना, कोई जड़ चीज भी आपके पास पड़ी हो वो आपको प्रभावित करती है। एक गन भी एक बच्चे के पास पड़ी होगी ना, वो गन धीरे धीरे बच्चे को उठाने का मन होगा और चलाने का मन होगा। चाहिए कि वो बच्चा वो बंदूक से दूर रहे। हर छोटी मोटी चीज आसपास में जड़ है, वो जड़ चीज भी व्यक्ति को असर करती है, तो जीवित चीज तो कितनी करती होगी। तो और भगवान महावीर ने यह भी कहा कि मंगल की कामना जीव मात्र के प्रति करनी चाहिए। मंगल की कामना, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी हो। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा। तो सबके लिए मंगल की कामना करनी चाहिए, लेकिन हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि सबके प्रति मंगल की कामना कर सके। हम कमजोर हैं, और कमजोर है इसीलिए बुरी भावना वाले लोगों से हम दूर रहते हैं, अच्छी भावना वाले लोगों के हम नजदीक रहते हैं। बाकी तो महावीर स्वामी जैसी आत्मा होगी तो वो मंगल भावना करेगी कि दुश्मन मंगल हो, शत्रु मंगल हो। महावीर स्वामी तो ये भावना करेंगे। लेकिन महावीर स्वामी ने जब आपके और मेरे लिए सोचा तो सोचा कि दुश्मन मंगल हो ऐसी भावना करेंगे तो ये श्रावक समाज नहीं समझ पाएगा, कर भी नहीं पाएगा। तो भगवान महावीर बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। शुरुआत कहां से की? भाई दुश्मन मंगल है बहुत दूर की बात है, पहले तो अरिहंत मंगल है, इतनी भी तो शुरुआत करो। अब जिसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अरिहंत मंगल नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं है, जिसमें कोई कषाय नहीं है, उनके प्रति तो हम मंगल की भावना कर सकते हैं ना। तो फिर बोलो अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है। जोर करना पड़ता है क्या दिमाग में? अरे भाई सिद्ध मंगल नहीं है तो मंगल कैसे माने? है ही, अरिहंत मंगल है ही, वो तो मान लो तुम, फिर दुश्मन मंगल है करना। लेकिन अभी अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, और केवली भगवान द्वारा प्ररूपित मार्ग, वीतराग मार्ग, वो मंगल है। तो प्रारंभ यहां से करे। श्रावक समाज को भगवान महावीर कहते हैं कि प्रारंभ यहां से करो। ये 4 मंगल है, और ये 4 मंगल की श्रद्धा दृढ़ हो जाए तो फिर भावना करना मेरा शत्रु मंगल हो, जिसके प्रति मेरा वैर है वो उसका मंगल हो, जिसके प्रति मेरी बनती नहीं उसका मंगल हो। कितना जरा
ऑकवर्ड लगता है ना कि शत्रु के प्रति मंगल की भावना करे, तो फिर शत्रु रहा कहाँ, ये तो बात है। लेकिन शुरुआत पहले अच्छी आत्माओं से करे, ये भगवान कह रहे हैं। अब मंगल होने से काम पूरा नहीं होगा, इसलिए तुरंत जोड़ा उत्तम भी होना चाहिए। ये पंच परमेष्टि मंगल भी है और उत्तम भी है। तो इसीलिए अरिहंता मंगलम सिद्धा, अरिहंता लोगुत्तमा, लोक यानी संसार, समस्त सृष्टि में अरिहंत उत्तम है, सिद्धा लोगुत्तमा, सिद्ध लोक में उत्तम है, साधु लोगुत्तमा, साधु लोक में उत्तम है, केवली पन्नतम, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा, केवली प्ररूपित धर्म मंगल है, जिसकी मैं बात करूंगा। तो ये मंगल है। अब मंगल भी है उत्तम भी है, तो क्या करना चाहिए? अब जब मंगल है कंफर्म, उत्तम है कंफर्म, तो क्या करना चाहिए? उसकी शरण में जाओ। मैं अरिहंत की शरण में जाता हूं, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, मैं सिद्ध की शरण में जाता हूं, साधु शरणम पवज्जामि, मैं साधु की शरण में जाता हूं, और केवली प्ररूपित धर्म की शरण। ये 4 शरण स्वीकार करने की बात कही गई। अब एक प्रश्न में खड़ा करता हूं। एक तरफ कहते हैं अशरण भावना, हमारे जैन धर्म एक भावना है, 12 भावना में अशरण भावना, कोई किसी की शरण नहीं बनता है, कोई किसी के लिए त्राण नहीं बनता, प्राण नहीं बनता है, तो यहां शरण की बात क्यों की गई? तो भगवान महावीर कहते हैं अरिहंत की शरण का मतलब है किसी दूसरे की शरण में नहीं जाना है, अपनी आत्मा की ही शरण में जाना है। अरिहंत अपनी आत्मा ही है। मेरा भविष्य काल है वो अरिहंत है, मेरा भविष्य काल है वो आत्मा का सिद्ध है, मेरी आत्मा का भविष्य वो आचार्य है, मेरी आत्मा का भविष्य उपाध्याय है, और मेरी आत्मा का भविष्य साधु है। वर्तमान में मैं साधु नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा की नियति साधु हो सकती है। तो आत्मा ही अरिहंत है, आत्मा ही सिद्ध है, आत्मा ही आचार्य है, आत्मा ही उपाध्याय है, आत्मा ही साधु है। इसलिए दूसरों की शरण में नहीं जाना है, अपनी ही शरण में जाना है। अब अपनी शरण में जाने से फायदा क्या होता है? आत्मा की शरण में जाने का फायदा क्या होता है? यहाँ बाहर की दृष्टि से देखे तो अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु की शरण में जाने के फायदा क्या? 2 फायदा। पहला फायदा, आदमी अहंकार से मुक्त हो जाता है। अब किसी की शरण जाके देखना, किसी के चरणों में झुक कर देखना, आपका ईगो चला जाएगा। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। कई लोग हमारे हिंदू परंपरा में तो साष्टांग वंदन करते हैं, हम आखा शरीर ने हुआड़ी दे, बे हाथ लांबा करीने हम सीधा दंडवत थईने वंदन करे, ने પછી अहंकार बचे तो तुम्हारी शरणागति बेकार की है। तो इस शरण में जाने का पहला फायदा, खाली शरीर न झुके, तुम्हारे अंदर का अहंकार भी झुके। और दूसरा फायदा यह है कि एक बार मैंने पंच परमेष्टि की शरण स्वीकार कर ली तो आदमी विकल्प मुक्त हो जाता है। उसके दिमाग में अब ये दुविधाएं नहीं चलती है, उसके दिमाग में बहुत सारे विकल्प नहीं चलते हैं, विचार नहीं चलते हैं, विचार वायु नहीं चलते हैं, क्योंकि छोड़ दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में और जीत तुम्हारे। दूसरी एक महत्व की बात कर दूं, फिर आगे बढ़े। समर्पण क्यों करते हैं? अरिहंते शरणम पवज्जामि, समर्पण, सरेंडर क्यों? देखो बड़ा फिलोसॉफिकल डिफरेंस फिर मैं आपको बता दूं। मैंने भी अभी आपको शुरुआत में कहा और परेश भाई ने भी बोल दिया कि श्रवण सुत्तम के आधार पर हम डीप स्वाध्याय करने जा रहे हैं, तो कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। 2 प्रकार के वाद होते हैं। एक ईश्वर कर्तृत्ववाद, कई लोगों के लिए नया नया शब्द होगा, लेकिन सुनो, ईश्वर कर्तृत्ववाद पहला शब्द। दूसरा शब्द है आत्मा कर्तृत्ववाद। हिंदू धर्म में भगवत गीता में भी कहा कृष्ण ने, मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। दोनों में फर्क है। इधर अरिहंते शरणम पवज्जामि में श्रावक
साधक कहता है, हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में आता हूं। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं शिष्य को, ए तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। अब फर्क समझ रहे हो? एक में साधक कहता है, हे भगवान आपके गुणों को मैंने देखा है, मैं आपके चरणों में सरेंडर होता हूं। और एक में भगवान कहते हैं तेरा कल्याण करना है तो तू मेरी शरण में आ जा। दोनों में फर्क है। तो ईश्वर कर्तृत्ववाद का मतलब क्या, सुन लीजिएगा। ईश्वर कर्तृत्ववाद ये कहता है कि ईश्वर उपादान है और व्यक्ति निमित्त है। फिर से जरा सुन लीजिएगा, जरा नए नए शब्द है। ईश्वर कर्तृत्ववाद, ईश्वर कर्तृत्ववाद तो समझ गए, जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर ने सृष्टि चलाई, ईश्वर ने ये पूरी दुनिया बनाई, ये जो मानता है इसको बोलते हैं ईश्वरवादी मान्यता। ईश्वर कर्तृत्ववाद ये मानता है कि ईश्वर उपादान है और व्यक्ति निमित्त है, यानी निमित्त उपादान के बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो ईश्वर सब कुछ करता है, व्यक्ति निमित्त है। ये फिलोसॉफी क्या कहती है, ईश्वर सब कुछ कराता है। इसलिए हिंदू धर्म का एक डायलॉग आया, ईश्वर की इच्छा के बिना, बोलो गुजराती में केवुं होय तो ईश्वरनी इच्छा वगर પાંદડું હલતું। तो आटला बधा પાંદડા ईश्वर हलावा आवता हशे? आ जैन लोकोनो प्रश्न। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता, यानी ईश्वर उपादान है, व्यक्ति निमित्त मात्र है, व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ कराता है। आत्मा कर्तृत्ववाद क्या मानता है, व्यक्ति उपादान है, ईश्वर निमित्त है। समझना, परीक्षा में पूछा जाएगा। आत्मा कर्तृत्ववाद ये मानता है मैं, व्यक्ति की आत्मा उपादान है, ईश्वर निमित्त मात्र है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर निमित्त मात्र है, तीर्थंकर कुछ नहीं करते हैं। महावीर स्वामी तुम्हारे कर्म तोड़ने नहीं आएंगे, आदिनाथ तुम्हारे कर्म तोड़ने नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन वो निमित्त है। महावीर स्वामी की छवि देखकर हम उसके सामने ध्यान करने बैठे तो उनकी करुणा, उनका भाव, उनकी वीतरागता हमारे अंदर, उसका इन्फेक्शन लग सकता है, तो वो निमित्त हो गए ना। हमारी साधना में तीर्थंकर क्या हो गए भाई, बोलो? निमित्त हो गए। पुरुषार्थ मेरा, निमित्त वो, उनके निमित्त से मैं मेरी आत्मा को जगाऊंगा। कि आत्मा कर्तृत्ववाद और ईश्वर कर्तृत्ववाद में मैं कुछ नहीं करता हूं, सब करे भगवान, अल्लाह तेरी मर्जी, खुदा तेरी रहम, तू जैसे रखेगा वही होगा। इसमें आदमी आलसी हो जाएगा, पुरुषार्थ छोड़ देगा, मुझे कुछ नहीं करना बाबा जी जैसी आपका आशीर्वाद। इसी से अकर्मण्यता आएगी, निठल्लापन आएगा, निकम्मापन आएगा। इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट समझ लो। इन दोनों कॉन्सेप्ट ने, ईश्वर कर्तृत्ववाद और आत्म कर्तृत्ववाद में जैन धर्म किसको मानता है? आत्म कर्तृत्ववाद को मानता है। और आत्म कर्तृत्ववाद का मतलब है मैं मूल हूं, ईश्वर भगवान तीर्थंकर अवतारी पुरुष मेरे लिए निमित्त मात्र है, उनका निमित्त पाकर मैं अपने कर्म को तोड़ सकता हूं। ये उसका फर्क है। और मांगलिक करने से 8 कर्म में अंतराय कर्म टूटता है। नंबर 1, ये मांगलिक और नवकार मंत्र का स्मरण करने से विघ्न दूर होते हैं। नंबर 2, और ये मांगलिक सुनकर कोई काम शुरू करो तो हर चीज में मंगल ही मंगल होता है, शुभ ही शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। ये नवकार मंत्र और मांगलिक सुनकर कोई भी काम करने का 3 फायदा। फिर बोलू, नंबर 1, शुभ ही शुभ होता है, मंगल। नंबर 2, अंतराय कर्म टूटता है। और नंबर 3, आपके जीवन में आने वाले विघ्न दूर होते हैं। इसीलिए ये सारी गाथाएं हम आगे देख रहे हैं। अब इसी का महत्व विस्तार से थोड़ा समझा रहे हैं। 6ठी गाथा से मैं चलूं। समण सुक्तम की गाथा पहली, नवकार मंत्र। दूसरी गाथा में ऐसो पंच नमुकारो,
तीसरी गाथा है अरिहंता मंगलम, 4 मंगल। चौथी गाथा है अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, शाहू लोकोत्तमा। 5वीं गाथा है अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, 4 शरण। 6ठी गाथा से मैं चलूं, अब विवेचन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पूरी मैंने भूमिका बना। 6ठी गाथा कहती है कि पंच परमेष्टि कैसे हैं, मंगल स्वरूप है, 4 शरण रूप है तथा लोक में उत्तम है, परम आराध्य है एवं नर सूर विद्याधरों द्वारा पूजित है। 3 शब्द यूज किए, नर यानी मनुष्य, सूर यानी देवता, और विद्याधर यानी लब्धिधर, लब्धिधारी जो तपस्वी होते हैं, उनके द्वारा ये पंच परमेष्टि पूजनीय है, कर्म शत्रुओं के विजेता है। ऐसे 5 गुरुओं के चरणों में, ऐसे 5 गुरुओं को, पंच परमेष्टि को हमेशा केंद्र बनाकर उसका ध्यान करना चाहिए। 7 गुप्त मंत्र दे दिया है, पंच परमेष्टि का ध्यान करो। लोग कहते जैन धर्म में मेडिटेशन कहाँ है, यहाँ है। समण सुत्तम में पहला ही घटा स्टॉप किया है कि पंच परमेष्टि का ध्यान करो। अभी बताएंगे विधि कैसे करना है। समण सुत्तम के पहले चैप्टर में पंच परमेष्टि के ध्यान की विधि है, लेकिन यहाँ कहा कि इन पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। 7वीं गाथा कहती है कैसे करे ध्यान, सघन घाती कर्मों के नाश करने वाले। अब 5 में से पहला पद कौन सा है, अरिहंत। कौन है अरिहंत, सघन घाती कर्मों के नाश करने वाले। 4 घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, इन 4 घाती कर्मों के नाश करने वाले, 3 लोक में विद्यमान, 3 लोक में, स्वर्गलोक, मनुष्यलोक और पाताल लोक, 3 लोक में विद्यमान भवी जीवों का विकास करने वाले। अभवी का विकास नहीं होता है, अभवी का मोक्ष नहीं होता है, अभवी की आराधना सब ठोक होती है। इसलिए यह कहा वो जो भवी जीव है उनके विकास करने वाले हैं। तीर्थंकर का अतिशय सूर्य के समान है, अनंत ज्ञानी एवं अनुपम सुखमय, ऐसे अरहंतों का जगत में जय हो। तो अरहत भगवान का ध्यान करना हो तो इतनी बातें आंख के सामने लाकर ध्यान करना। अरिहंत भगवान 4 घाती कर्मों को जिन्होंने तोड़ दिया है, 4 घाती कर्मों को जिन्होंने, ये विजुलाइज करना, जिनके 4 घाती कर्म खत्म हो गए, और फिर उसका चिंतन करना कि ये मंगल है, शरण रूप है, लोक में उत्तम है, परम आराध्य है, मनुष्य उसकी वंदना करते हैं, देवता इंद्र उसकी वंदना करते हैं, विद्याधरों द्वारा वो पूजित है। ऐसे अरिहंत भगवान का ध्यान करें जो कर्म शत्रुओं के सामने विजेता बनकर खड़े हैं। ऐसे अरिहंत को याद करके उनका ध्यान करना चाहिए। 7वीं गाथा, ये 6ठी गाथा, 7वीं गाथा। 8वीं गाथा कहती है 8 कर्मों से रहित। अब सिद्ध भगवान कैसे, 8 कर्मों से रहित, कृतकृत्य। कृतकृत्य का मतलब है, ये जरा बड़ा बड़ा मुश्किल शब्द है, कृतकृत्य। सिंगापुर वाले के लिए डिक्शनरी थोड़ी रीच हो जाएगी आज। कृतकृत्य का मतलब है अब कुछ करने को बाकी नहीं है, जो करना था सब कर लिया, उसको बोलते कृतकृत्य। कृतकृत्य मतलब जो करना था वो कर लिया, नो एनी पेंडिंग एक्टिविटी टू डू, इसको कृतकृत्य कहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त, ध्यान करते समय विजुलाइज करो। सकल तत्व रहस्य के दृष्टा, सकल तत्व सब कुछ जानने वाले ऐसे दृष्टा सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करो। हे सिद्ध भगवान, जो आप जन्म मरण से मुक्त हो गए हो, यह आपका स्वरूप है कि 8 कर्मों को तोड़ दिया, आप मुझे मुक्ति की सिद्धि प्रदान करो, ऐसी कामना की गई। अरिहंत क्या देते हैं, जीव का विकास करते हैं। अरिहंत की आराधना करने से जीव का डेवलपमेंट होता है।
इसलिए शब्द आया भव्य जीवों का विकास करने। सिद्ध क्या करते हैं? मुझे सिद्धि प्रदान करते हैं। आगे चले तो तीसरा पद है आचार्य का 5 महाव्रतों के कारण सन्मुन्नत, 5 महाव्रत की आराधना करने के कारण हमेशा ऊर्ध्व गति की ओर आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन स्व समय एवं पर समय रूप श्रुत के ज्ञाता, ये 2 शब्द आए, स्व समय एवं पर समय रूप श्रुत के ज्ञाता। मेरे सामने ऑडियंस बैठा है, समझ में आएगा नहीं कुछ, कोई बात नहीं। तो आज जरा भूमिका बना रहे, पहले दिन कान में शब्द जाने दो। तो स्व समय पर समय को ज्ञाता का मतलब है अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। स्व समय, समय का मतलब आत्मा, खुद की आत्मा को भी जानता है और दूसरे की आत्मा को भी जानता है। ऐसे श्रुत के ज्ञाता तथा विविध गुण समूह के परिपूर्ण आचार्य भगवंत मेरे पर प्रसन्न हो, मेरे पर प्रसन्न हो। हे आचार्य भगवान मेरे पर प्रसन्न। आचार्य भगवंत जिन पर प्रसन्न हो वही आदमी प्रसन्न हो सकता है। मेरा जो गुरु है वो मेरी आत्मा की परिणति देखकर मेरे पर कृपा बरसाए तो ही मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। आचार्य का काम है प्रसन्नता का दान देना। सिद्ध का काम क्या है? सिद्ध का काम है सिद्धि देना। और अरिहंत का काम क्या है? भव्य जीवों का विकास करना। 10वीं गाथा उपाध्याय की कहती है, जिसके उस पार जाना कठिन है, ऐसे अज्ञान रूपी गहन अंधकार में भटकने वाले भव्य जीवों को ज्ञान का प्रकाश देने वाले। उपाध्याय कैसे हैं? जिसके उस पार जाना कठिन है, ऐसे अज्ञान रूपी गहन अंधकार। अज्ञान से पार जाना बहुत कठिन। अज्ञान तो जन्मों जन्मों से लगा हुआ है, उसके पार जाना कठिन है। फिर भी भव्य जीवों को ज्ञान का प्रकाश देकर जो पार कर देते हैं, ऐसे हे उपाध्याय भगवान मुझे उत्तम गति प्रदान करो। मैं क्या कह रहा हूं? अरिहंत क्या देते हैं? रिकॉल करो। अरिहंत क्या देते हैं? हमारे जीवन को गति दे, विकास करते हैं। भव्य जीवों को विकास देने वाले सिद्ध क्या करते हैं? जयसंग भाई, सिद्ध क्या करते हैं? सिद्धि प्रदान करते हैं। आचार्य क्या करते हैं? आचार्य क्या करते हैं? प्रसन्नता देते हैं। क्या देते हैं? प्रसन्नता। उपाध्याय क्या देते हैं? उत्तम गति देते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना उत्तम गति नहीं होती है, इसलिए ज्ञान का कनेक्शन उत्तम गति के साथ। और साधु के बारे में, साधु का ध्यान करें कैसे? शील रूपी माला को स्थिरता से धारण करने वाले। शील यानी ब्रह्मचर्य, शील यानी जो आदमी चुस्त आचारवान है और इस शील रूपी माला को स्थिरता से धारण। ये माला शब्द क्यों यूज किया? ब्रह्मचर्य तो एक ही व्रत है, तो माला क्यों? क्योंकि शील के साथ 9 बाण आती है। एक शील के व्रत का पालन करने वाले को बहुत सारे नियम पालन करना पड़ता है। उन नियमों को पालन करने के कारण पूरी माला बन जाती है। इसलिए कहा शील रूपी माला को स्थिरता से धारण करने वाले राग रहित। राग रहित का मतलब है कि संसार की चीजों में उसका मोह नहीं है। यश समूह से भरपूर कितने श्रावक समाज द्वारा, भवी जीवों द्वारा तो वंदनीय और पूजनीय है। इसलिए यश के समूह रूप भरपूर है, श्रेष्ठ विनय द्वारा सुशोभित है। हजारों लाखों लोगों के द्वारा तो विनय जिसका किया जाता है, ऐसे सुशोभित शरीर वाले साधु से प्रार्थना की गई, ऐसे हे साधु भगवंत मुझे सुख प्रदान करो। सुख कौन देगा? सुख चाहिए तो ऐसे साधु की संगति में बैठो जो शीलवान है। हमारी सौराष्ट्र की गंगा सती ने भी गाया, शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए पानबाई। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए। ऐसा शीलवंत ब्रह्मचारी साधु मिल जाए जो मन से, तन से और भाव से ब्रह्मचारी है। ऐसे ब्रह्मचारी साधु की शरण में बैठने से आदमी को सच्चे सुख की अनुभूति होती है।
हम सुख के लिए तो कहाँ कहाँ भटकते हैं, जब खुद सुखी नहीं हो उनसे हम सुख मांगते कहाँ मिले। अब 12वीं गाथा कहती है ये पंच परमेष्टि में ओम छिपा हुआ है। क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि में ओम छिपा हुआ है। कैसे? अरिहंत का अरिहंत का अशरीरी सिद्ध का अ प्लस अ बराबर अरिहंत का अशरीरी सिद्ध का अ प्लस अ बराबर आचार्य का अ प्लस आ बराबर आ। क्या हो गया? रीसेट हॉटस्पॉट। अरे भैया हॉटस्पॉट पूरा हो गया क्या? क्या हो? અમે સાંભળી શકી છીએ સમજી. हाँ चालू हो गया? અમે સાંભળી શકીએ ને જોઈ શકીએ. आवाज आवे छे? હા હા આવે છે બરાબર. आवे छे ने? हाँ અહીં જો एक मिनट। हाँ अमन एक तो आचार्य का आ, उपाध्याय का उ। तो संस्कृत भाषा में आ प्लस उ बराबर ओ। संस्कृत लैंग्वेज में आ प्लस उ, उपाध्याय का उ, आ प्लस उ बराबर ओ। અને પાંચમા પદ मुनि का म, पांचवा पद साधु मुनि, मुनि का म, तो ओ म। अरिहंत अशरीरी का आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, आ प्लस उ बराबर ओ और मुनि का म। इस तरह से नमस्कार महामंत्र में गुप्त रूप से ओम छुपा हुआ है। उसके बाद 13वीं, 14वीं और 15वीं गाथा में 24 तीर्थंकरों के नाम है। उसवमजियंच वंदे संभवम अभिनंदनंच लोगस की जो गाथा है दूसरी से, वो 13वीं, 14वीं और 15वीं गाथा में 24 तीर्थंकरों के नाम है जो लोगस में है। 16वीं गाथा कहती है कि तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? चंद्र से अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक तेजस्वी प्रकाशमान एवं सागर से अधिक गंभीर ऐसे है सिद्ध भगवान, मुझे सिद्धि प्रदान करे, मुझे सिद्धि प्रदान करे। तो ये पूरा मांगलिक है, ये पूरा मंगल पाठ है। और मैं अंत में पूरी चर्चा को सार रूप में समेटते हुए एक कहना चाहूंगा कि ये मांगलिक अद्भुत है और ये मांगलिक जो कई लोगों के ग्रह नड़ते हैं, घણા લોકોના ગ્રહ નડે, આ માંગલિક તમે સાંભળીને જાઓ, માંગલિકનું ઉચ્ચારણ કરીને જાઓ, ઘરેથી બહાર જાઓ ત્યારે, ઇન્ટરવ્યુ આપવા જાઓ ત્યારે, એક્ઝામ આપવા જાઓ ત્યારે, કે કોઈ પણ શુભ અશુભ કામ કરવા જાઓ, યાત્રા કોઈ પણ કરો, તો ઘણી બધી લૌકિક વિધિઓ આપણે મંગલની કરતા હોઈએ છીએ, પણ માંગલિક સાંભળીને જાઓ એટલે બધા મુહૂર્ત આવી ગયા, બધા ચોઘડિયા આવી ગયા, બધું આવી ગયું. એટલે આ માંગલિક આપણે ત્યાં અમારે ઇન્ડિયામાં તો નાના નાના બાળકો પણ કોઈ પણ નવું કામ કરે એટલે માંગલિક સાંભળીને જાય, કેમ કે માંગલિક સાંભળીને જાય એટલે એનો કોન્ફિડન્સ આવી જાય, વિઘ્ન ના આવે, અંતરાય ના આવે. તો હું દરેકને વિનંતી કરું કે આ પાઠ માંગલિકનો યાદ કરવા જેવો છે, યાદ ન હોય તો કરી લેજો. બાળકોને આ પાઠ યાદ કરાવો, પાઠશાળા જ્ઞાનશાળાના જે બાળકો હોય એને આ પાઠ યાદ કરાવો. અને કોઈ પણ આવું નવું કામ, શ્રેષ્ઠ કામ કરતા હોઈએ ત્યારે માંગલિક આપણે સાંભળીએ. અને આપણે માંગલિક બધા સાંભળે છે, લગભગ કોઈ પણ સાધુ સંતો પ્રવચન આપે એટલે છેલ્લે માંગલિક કરે, તમારા ઘરે ગોચરી આવે ત્યારે પાછું માંગલિક કરે. અને ઘણા લોકો, હું એ પણ કેટલી જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરું, છેલ્લે માંગલિક સંભળાવું, માંગલિક સાંભળવા વાળાને હું જોતો હોઉં, એનું માઇન્ડ કેટલું ભટકતું હોય, સ્થિર ન હોય, એની દ્રષ્ટિ ભટકતી હોય, એનું મન એકાગ્ર ન હોય, ભાવ ખબર ન હોય, તો ખાલી એક પરંપરાનું નિર્વાહ ના કરો, ખાલી ઔપચારિક રૂપે ના ગણો,
એ પૂરા ભાવથી કનેક્ટ થઈને જો આ અર્થ સમજીને આપણે માંગલિક સાંભળીએ અને માંગલિક બોલીએ તો અવશ્ય આ માંગલિક આપણું મંગલ કરનાર છે, આપણું શુભ કરનાર છે, વિઘ્ન નિવારણ કરનાર છે. એ માંગલિક સાંભળીને આપણે આગળ વધીએ તો હું માનું છું કે આ અદ્ભુત સૂત્ર છે. અને સમણ સૂત્રનો પહેલો જ પાઠ આ નવકાર મંત્રને માંગલિકથી શરૂ થાય છે. મેં બહુ કોશિશ કરી, આશ્ચર્ય થયું મને કે આટલું મોટું માંગલિક જૈન ધર્મનું દરેક આચાર્ય ખૂબ માંગલિક સંભળાવતા હોય છે અને આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ, પણ આ માંગલિક વિશે મને ગૂગલમાં કંઈ જોવા ન મળ્યું, મને પુસ્તકમાં ક્યાંય જોવા ના મળ્યું. તમે ચેક કરજો ગૂગલમાં જઈને, માંગલિક વિશે કંઈ જોવા નહીં મળે. આટલો મોટો પાઠ, આટલી મોટી આરાધના, આટલી મોટી ભગવાન મહાવીર સ્વામી દ્વારા પ્રદત્ત ગાથા, અને આપણે એનું ક્યારેય વિવેચન સાંભળ્યું નથી. મને ઘણી વાર થયું કે આના ઉપર પ્રકાશ પાડવો જોઈએ. તો જેટલો મારો ક્ષયોક્ષમ હતો આ માંગલિક વિશે મેં તમારી વચ્ચે આજે સ્વાધ્યાય કરાવવાની કોશિશ કરી છે. પર્યુષણનો આજે પહેલો દિવસ છે અને આ વ્યાખ્યાન પૂરું થશે ત્યારે ફરી પાછા માંગલિક સાંભળીશું. માંગલિક સાંભળવાની શરત એ છે આંખ બંધ કરીને સાંભળીએ, સ્થિર ચિત્તે સાંભળીએ, સ્થિર શરીરે સાંભળીએ, અને સાંભળીએ ત્યારે શબ્દો ઉપર ધ્યાન આપી એના ભાવમાં જવાની કોશિશ કરીએ તો નિશ્ચિત સબ્બ ભાવ પણાસણો એ મંત્ર આપણો સાર્થક થાય છે. એ દિશામાં આપણે આગળ વધીએ એવા ભાવ સાથે આજે મારી વાતને વિરામ આપું છું. ઓમ અરહમ, ઓમ અરહમ, ઓમ અરહમ. છેલ્લે આપણે પ્રશ્નો લઈ લઈશું. આજના પ્રશ્નો કોણે કેટલું ધ્યાનથી સાંભળ્યું છે ખબર પડશે. તો કેનલભાઈ, પરેશભાઈ, જે લોકો જવાબ આપે એમને જરાક સ્પોટલાઇટ ઉપર લાવજો. પહેલો પ્રશ્ન છે, समण सुत्तम की रचना के मूल में प्रेरक बल कौन थे? गुजरात में बोलूं, समण सुत्तम की रचना जे थई एना मूल में प्रेरक बल कौन, उसका जवाब देना. जिसको जवाब आए हाथ खड़ा करेंगे और कमेटी वाले से विनती चूज करेंगे और उसको चांस देंगे. तुम्हारा मत हाथ ऊपर करो, बोलता नहीं. हाँ, समण सुत्तम रचना के मूल में प्रेरक बल कौन है? जवाब સમજી તમારો અવાજ નથી આવતો. Maybe Kenalbhai, if you can just stop sharing for a while. We'll just see. I think just give us a second. I think Samanji's connection dropped out. So as we have the questions, just one request, don't put the answers on the chat window, please. Samanji will let you know the answer himself in this case. I can see Samanji is disconnected, so we'll just give him a couple of seconds to join back. एक मिनट समझिए, एक मिनट.
Can you unmute? Can you make Samanji co-host? Hang on. 1 minute, Samanji, તમને co-host બનાવી છે. હવે તમે co-host બની ગયા સમજી? ઓકે, સોરી, એક્સ્ટ્રીમલી હા. સોરી. હા, પહેલો ક્વેશ્ચનનો જવાબ તમે ઘડીક વાર વયા ગયા હતા એટલે બધાએ ચર્ચા કરીને જવાબ તૈયાર કરી નાખ્યો છે. કાંઈ વાંધો નહીં. આપણે ઉદાર છીએ, બધા ચર્ચા કરી લીધી, બહુ સારું. તો समर સૌ सूत्र रचना के मूल में प्रेरक बल कौन थे? તો સૌથી પહેલા હાથ રશ્મિ બેને ઉપર કર્યો હતો. हाँ, रश्मि बेन. हाँ, बोलो. રશ્મિ બેન, you can unmute yourself. विनोबा, हाँ, वो विनोबा भावे, है जी? विनोबा भावे जी थे इसके मूल में प्रेरक बल। राजू भाई बाहर क्यों जाए? मैंने बोला. हाँ, विनोबा भाई, बहुत सरस. करेक्ट जी. आंसर. करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, समण सूत्रम और तत्वार सूत्र में क्या फर्क है? જેને આન્સર ખબર હોય એના છાત્ર ઉપર રાખજો, નકર તમને વિશાલભાઈ છે, એનો હાથ ઉપર છે, આપણે એમને સ્પોટલાઇટ કરશું. વિશાલભાઈ, તમારો વિડિયો ઓન કરજો. હા, એક મિનિટ. You can unmute yourself now. Okay, thank you. अच्छा. Okay. સમણ સૂત્રમ અને તત્વાર્થમાં ફરક ઈ છે કે એક સંસ્કૃતમાં લખેલું છે, તત્વાર્થ સંસ્કૃતમાં લખેલું છે ને સમણ સૂત્રમ અર્ધમગધી ભાષામાં લખેલું છે. अर्धमागधी भाषा. અર્ધમાગધી ભાષામાં લખેલું છે ને તત્વાર્થ આચાર્યના દ્વારા લખેલું છે ને સમણ સૂત્રમ ભગવાન તીર્થંકરોની વાણી છે. તત્વાર સૂત્ર આચાર્ય દ્વારા લિખિત છે અને સમણ સૂત્તમ ભગવાન મહાવીરની મૂળ વાણી છે. Thank you. क्वेश्चन नंबर 3, इस ग्रंथ के 4 खंड कौन कौन से है? ચિકના બેન છે, એમને સ્પોટલાઇટ કરું છું. હા, ચિકના બેન, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. જ્યોતિર્મુખ, મોક્ષ માર્ગ, તત્વાર્થ દર્શન અને સ્યાદવાદ. करेक्ट आंसर. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 5, धर्म की 2 मान्यताएं कौन सी है? धर्म की 2 मान्यता कौन सी है? રાજેન્દ્ર શેમાલ ને હાથ ઊંચા કર્યા છે, એને સ્પોટલાઇટમાં નાખું છું. You can unmute yourself now, રાજેન્દ્ર ભાઈ. You can unmute yourself. Yeah. Yeah, Go on. so it is ईश्वर कर्तृत्ववाद और आदमी कर्तृत्ववाद. गलत. दो धर्म की 2 मान्यता कौन सी है? नेक्स्ट, दूसरा कोई? ઓકે, ભૂમેલભાઈ છે, એમને નાખું છું. ભૂમેલભાઈ, you can unmute yourself. હા, બોલો. એક છે કે ભગવાન કરતા છે અને બીજી मान्यता का नाम बोलो, पहले मान्यता के नाम बोलो. એક આત્માવાદી છે અને બીજું
नाम નથી યાદ. Next. Okay, we'll ask the next one. કોના હાથ ઊંચા છે? ધ્વાનીબેન ના છે, એને કહું છું to ask to unmute. Dhwaniben, you can ચલો જલ્દી. એક ઈશ્વરવાદી અને બીજું આત્મવાદી. ઈશ્વરવાદીમાં આપણી બિલીફ છે કે ભગવાન મનુષ્યના રૂપમાં જન્મ ધારણ કરે છે. આત્મવાદી માન્યતામાં છે ભગવાન મનુષ્ય નથી બનતા, ભગવાન મનુષ્ય નહીં બનતા હોય, પરંતુ મનુષ્ય ભગવાન બને છે. હા, કરેક્ટ આન્સર. થેન્ક યુ. I think next question. मांगलिक में कितने परमेष्टि का स्पष्ट उल्लेख है? ये मैंने बहुत स्पष्टीकरण नहीं किया है, लेकिन आप शायद इशारे में समझे होंगे. जरा मांगलिक में मंगल पाठ जो है, अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगल जो पाठ है, उसमें कितने पंच परमेष्टि जो है उसमें से कितने परमेष्टि का स्पष्ट उल्लेख है? राजेश भाई छे, एमने स्पॉटलाइट पर नाखું છું. जी बोलो. परमेष्टि पाछो बोलो. पांच परमेष्टि ना. ओके. मांगलिक में कितने परमेष्टि का स्पष्ट उल्लेख है? स्पष्ट शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर कट जिसका वहां पर उल्लेख किया गया है मांगलिक के अंदर, वो परमेष्टि कितने हैं 5 में से? वेट करो. ભાવિન ભાઈ ને સ્પોટલાઇટ પર નાખું છું. हाँ भाविन भाई बोलो. 3 परमेष्टि उल्लेख है. अरिहंत, कितने परमेष्टि? साधु. कितने परमेष्टि? 3. कौन से? अरिहंत, सिद्ध और साधु. हाँ बराबर है. जवाब करेक्ट. कैसे? अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि. हाँ, इसमें कहीं नहीं आया आचार्य शरणम पवज्जामि, साधु शरणम, उपाध्याय शरणम पवज्जामि, कहीं नहीं आया. स्पष्ट उल्लेख पंच परमेष्टि में से 3 का ही है. अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम. उपाध्याय मंगलम नहीं आया, आचार्य मंगलम नहीं आया. तो ये 2 निकाल दिए गए मांगलिक में. एक ऐड किया, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्ररूपित द्वारा धर्म, ये भी मंगल है. तो ये 2 कैसे निकाल दिया भाई? पंच परमेष्टि थे तो 2 निकालने दिया है. आचार्य और उपाध्याय दोनों पद साधु में आ गया है, क्योंकि ओरिजिनली आचार्य भी साधु है, उपाध्याय भी साधु है. इसीलिए आचार्य उपाध्याय का समावेश साधु में किया गया है. इसलिए पंच परमेष्टि भाव से आ गए हैं, लेकिन शब्द रूप में 3 परमेष्टि का उल्लेख. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन और बिफोर लास्ट. पंच परमेष्टि में विकास करने वाले कौन है? यानी क्वेश्चन, सॉरी, ओके, उत्तम गति. हाँ, पंच परमेष्टि में उत्तम गति की मांग किनसे की गई है? उत्तम गति. ओके, हमारे यहाँ ऑडियंस में बैठे एक भाई बोल रहे हैं, बोलो. आचार्य. उत्तम गति की मांग किससे की गई? आचार्य. रॉन्ग आंसर. हाँ, आप में से बोलो, ग्रुप में से. उत्तम गति की मांग पंच परमेष्टि में से किससे की गई? आड़ेधड़ नहीं. પરેશ ભાઈ કોઈ જવાબ? હા, તો જીતુભાઈ છે, એને તમારો વિડિયો ઓન કરજો જીતુભાઈ. પહેલા તમારા હાથ ઊંચા છે પણ વિડિયો ઓન કરો. તો જેના વિડિયો ઓન છે એને જ ક્વેશ્ચન અમે આપશું. અધરવાઇઝ વી કાન્ટ સ્પોટલાઇટ યુ. સો
Hiten Bhai, can you on your video? Please keep your video on, everyone. Please keep your video on. Okay, so Bye. Hiten Bhai, you can unmute. हितेश भाई बोलो, बोलो हितेश भाई. साधु साधु पासेથી. सॉरी, रॉन्ग आंसर. उत्तम गति की मांग उपाध्याय उपाध्याय पासेથી. कौन बोल रहे हैं? जीतू. उसके पहले कौन बोल रहे थे? उसके पहले कोई और अच्छा, बोल उसके रहा हाँ, है. आप जीतू भाई. ओके, जीतू भाई राइट. मैंने सोचा पहले भी आप बोल रहे थे. ओके, जीतू नहीं, भाई का नहीं. करेक्ट आंसर है आचार्य से मांग की गई है उत्तम गति की. हाँ. आई थिंक ओके, ऑल नहीं क्वेश्चन डन. उपाध्याय उपाध्याय. हाँ, उपाध्याय से करेक्ट. सॉरी, उपाध्याय कौन बोले? हाँ, आचार्य बोले. उपाध्याय राइट. उपाध्याय से मांग की गई है. ओके, कर्नल भाई डन. क्यों है क्वेश्चन? मांगलिक क्यों सुननी ओके, चाहिए? हाँ, मांगलिक क्यों सुननी चाहिए? 3 रीजन दीजिए. मांगलिक क्यों सुननी चाहिए? 3 चीजों के लिए. बोलो राजू. चलो जवाब. कोई नहीं. રવિ ભાઈ છે, એમને કહું છું સ્પોટલાઇટ. हाँ रवि भाई. हाँ, रश्मि बेन बोलो. Okay, we give to Rashmi Ben. Go हाँ, ahead. रश्मि बेन. मांगलिक 3 रीजन है उसके. एक तो शुभ भाव में जाने के लिए, अंतराय खत्म करने के लिए और विघ्न हरने के लिए. फिर से बोलिए. शुभ भाव के लिए, अंतराय खत्म करने के लिए और विघ्न हरने के लिए. हाँ, बराबर है. ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर. शुभ भाव में जाने मतलब मंगल, हमारा मंगल हो उसके लिए. ठीक है, शुभ भाव मंगल हो, एक ही बात. करेक्ट आंसर रश्मि बेन, थैंक यू. तो ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स डन. आज का पहला दिन का सत्संग को हम विराम देते हैं मांगलिक के साथ. सबसे मेरी विनंती है, कल सुबह का जो हमारा स्वाध्याय होगा, इंडिया का टाइम 8 बजे, आपका 9, 10, 10:30 बजे. तो सबका अपना वीडियो ऑन रखिएगा प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि आप सुन ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. तो कल सब अपना वीडियो ऑन रखेंगे, मेरी विनंती. हाँ, तो हाँ, एनी सूचना बिफोर मांगलिक? હા, જરાક સૂચના આપી દઉં સમનજી બધાય માટે. એટલે કાલનો પ્રોગ્રામ આપણે જોઈ લઈ. Pajoshan Day 2, સવારના લેક્ચર will be at 10:30 AM Singapore and Malaysia time. ધર્મ શું છે? ટોપિક ધર્મ શું છે? 82 to 101 ગાથા. After that, in the afternoon, we have English Pratikaman. This is open to everyone. Adults, kids, youth, seniors, from everyone from Singapore or Malaysia, or even anyone in India. Is the same Zoom link. You're welcome to join English Pratikaman from 3 to 4:30 in the afternoon. From 4:30 to 5:30, we have a special session for the youth, right? So all youth, please join in and participate in the English, in the youth session. From in the evening, Stanakwasi's Pratikaman will be on Zoom. So please join Stanakwasi Pratikaman from 6:30 to 8. Deravasis, you would have already booked your slots at the Stanak. So for those who have been allocated only, please go to the Stanak. Please do not go to the Stanak if you have not registered, right? And finally, tomorrow, of course, in the evening, we meet again for the continuation of the Saman Suttam Kevu Che Apnu Jin Sasan at 8:30 to 10 in the evening, right? So we have a full day program. Request everyone to be on time so that we can have maximum time with Samanji
tomorrow morning 10:30 AM સાપ સમજીના 8 વાગ્યા હશે તો સમજી રેડી થઈ ગયા હોય તો આપે તો રેડી થવું જ જોઈએ 10:30 સુધીમાં, right? So everybody please be ready. Okay, thank you. समझिए चलो, हमें मंगल पाठ सुनिए। सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मांगलिक सुनेंगे, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूरे भाव से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणमेशो पंचनमुक्तारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सद्वे सिंह पडमम हवै मंगलम। श्री श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। शिवमस्तु सर्वजगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। अरहम एवरीवन, अरहम। कल मिलेंगे। right. वंदामी नमन स्वामी समझी। हाँ जी, अरहम एवरीवन। जय जिनेंद्र। Yes. You can unmute yourself and say Vandami Naman Swami before you exit the Zoom. Thank you. You can put yourself in the gallery view. वंदामी नमः સાહેબજી સાહેબજી એક સવાલ હતો પૂછાશે? You can ask the questions tomorrow. Any questions that you would like to ask, you can ask tomorrow. अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप केनल भाई को या परेश भाई को लिख के भेज दो, वो मेरे तक पहुंच जाएगा। आई विल ट्राई टू कवर योर क्वेश्चंस। जी जी चलो, जय जिनेंद्र everyone. We'll end the Zoom session here. वंदामी नमस्वामी स्वामी जी। अरहम नमन स्वामी जी। अरहम अरहम। वंदामी नमन स्वामी स्वामी।